Today we are going to discuss about the Shelley's immortal lyric with the name of the To a Skylark. It is a lyric which he has written during the time of the 1820. It was a time when he moved to Pisa in 1820 during the time of the January, and he has written some important lyric that time with the name of Ode to West Wind and To a Skylark and the Cloud. And Skylark is the most popular poem and the lyric of Shelley during this time. It is written in 105 lines and divided into 21 stanzas, contains 5 lines each, and it is a lyric which he has written during the time of the 1820, and it was published during the time of the 1821, and it was written in Kasariki near Latagor. Romantic poets has a great liking for the bird songs. Wordsworth expressed about the song of the skylark and the cuckoo. Keats expressed about the song of the nightingale, and in the same way, Shelley also expressed about the song of the skylark. But there is a great difference between the song of the Wordsworth skylark and the Shelley's skylark. Wordsworth skylark sings in the sky, but it has its link with earth, and Shelley's skylark sings in the sky and the place near to the heaven. And he has compared his own skylark to a high-born maiden living in a palace tower, and a cloud of fire, and a glowworm, and a rose embowered in its green leaves, and whose race is just begun. And he has compared it with the just like a beam of the moon, and further he compared it with the just like a melodious shower of rain, and everyone is unknown about this melody, and he also expressed about it in different way. Compton Rickett says about it that Shelley's exhaled verses just like a flower exhale fragrance, and the fragrance of the blossom varies the power and the quality. So did the Shelley's verses varies in the artistic merit, and one essential point about it is that there is no effort and the laborious artistry about it at any time. He further expressed that To a Skylark, thought is nothing about it. It is not thought as the finest lyric of Shelley, but it is the most important lyric of Shelley's lyrics. And he expressed further that the lyricist before the Shelley has written on the theme of the sex and the water passions, but he has devoid the theme of the passion and the other things in his lyrics, and Shelley divided these elements just like a sex and the passion, and he made and elevated higher to the physical plane. The caroling of real skylark forced Shelley to take his pen and copy and compose this immortal lyric. Edward Gross written about it that this poem revealed Shelley's yearning for divine ecstasy, and the bird which is singing in the forms of the bird is not an ordinary bird for the Shelley, but it is a divine spirit from him for him. And he expressed that his own unsatisfied desire through the song of the skylark. And as I have already told you that he has compared skylark with a highborn maiden girl, with a rainbow, and with a glowworm, and further with a rose embowered in its green leaves, and whose race is just begun, and with the beam of the moon, keen beam of the moon, and further he expressed the presence of the skylark, and the presence is in the forms of the showers of rain, and which is full of the melody. But what is behind this melody? Everyone is unknown about it,
And he further requests to a skylark to impart him, to tell him the secret of his sweet song. And he expresses that, tell me half the gladness that thy brain must know, tell me half the gladness that thy brain must know, such harmonious madness from my lips would flow. The words should listen then as I am listening now. The words should listen then as I am listening now. And he present that the skylark is not on the earth. It is never on the earth. To kids that where people sit and hear each other groans. The skylark divided these places. The word despises the word in which kids find fever and flood. The song for the poet, the song of the bird for the poet is better than all measure, better than all measure of beautiful sound, better than all measure of beautiful sound, better than all treasure that in books are found. There is rich and beautiful simile and metaphor in the poems which lend a great charm to the poetry. But excess use of simile and metaphor discarded the reader's mind from the reality of the theme. And there are new types of simile and metaphor which is used by poet in it, which give a new artistic charm to this poetry. And in this way he has given a great artistic quality in the forms of the skylark. The skylark is nothing but poet's own spirit, soaring high and drifting high and high in the sky in quest of salvation as the eternal peace and perfection of the soul. And he symbolizes the soaring of the bird with the idea of escapism of his own, and there is rich imagery in it. And Dr. Protima Tagore is of the opinion that this lyric of Skylark, which is written by Shelley, is a highly suggestive of philosophy of life, and she expressed about it in the forms of these lines: we look before and after. We look before and after. Our sweetest song are those that tells us of the saddest thought. Our sweetest songs are those that tells us of the saddest thought. Now I am going to discuss about the whole poem line by line. Hail to thee, blithe spirit, bird thou never read, that from heaven or near it pourest thy full heart in profuse distance of unpremeditated art. Here the poet express हेल टू दी, हेल वेलकम करना, स्वागत करना, टू दी दी इंडिकेट टू यू, उस यानी कि ब्लिद मीन्स जॉयफुल एंड स्पिरिट मीन्स अ सुपर नेचुरल बर्ड, यानी कि उस महान आत्मा का, उस बर्ड का जो है आनंदपूर्वक स्वागत करिए. बर्ड दाउ नेवर रेट, उस एड्रेस कर रहा है उस बर्ड को और कह रहा है कि तुम कोई साधारण जो है बर्ड नहीं हो. यू आर नॉट एन ऑर्डिनरी बर्ड. रेट इंडिकेट टू द ऑर्डिनरी बर्ड, नॉट एनी ऑर्डिनरी बर्ड. दैट फ्रॉम हेवन और नियर इट ही एक्सप्रेस दैट यू सिंग्स योर ब्यूटिफुल सॉन्ग इन हेवन और द प्लेस नियर द हेवन. पोरेस्ट दाई फुल हार्ट, यहाँ पे पोरेस्ट कास्ट के लिए है, उद्देलित करती है. फुल हार्ट यानी कि अपने हृदय की जो है गहराई में जो उसके जो फीलिंग्स है, उसकी भावनाएं हैं, उसे एक्सप्रेस कर रही है इन प्रोफ्यूज स्ट्रेंस. यहाँ पे प्रोफ्यूज इंडिकेट टू द टू मच, अधिक मात्रा में. स्ट्रेंस एक्सप्रेस टू द फ्लो ऑफ म्यूजिक, संगीत की धारा को. अनप्रीमेडिटेटेड एक्सप्रेस विच वॉज नॉट थॉट बिफोर, यानी कि उसका जो स्ट्रेन है वो इतना जो है इस प्रकार है जिसके बारे में कभी सोचा ही नहीं गया हो. Here the poet express that the bird sings its merry note in or near the heaven. Further, its note is expressed in spontaneous melodies. Third, it is a gale like anything. It is hence a blithe spirit, not a bird. In next stanza, higher still and higher from the earth thou springest like a cloud of fire. The blue deep
thou wingest and singing still does soar and soaring ever singest. Here the poet expresses higher still and higher, यानी कि बहुत ही ऊंचाई पर ऊंचे ही ऊंचे उड़ती जा रही है। एट के इंडिकेट किया गया है स्टिल के लिए। फ्रॉम द अर्थ दाउ स्प्रिंग्स्ट, हेयर स्प्रिंग्स्ट एक्सप्रेस फॉर द फ्लाई ऑफ बर्ड, यानी कि पृथ्वी से बहुत ऊपर की तरफ ऊंचाई की तरफ उड़ रही हो। लाइक अ क्लाउड ऑफ फायर, यहाँ पे सिमली यूज़ किया गया है। हियर द सिमली इज यूज लाइक अ क्लाउड ऑफ फायर। हियर एक्सप्रेस द क्लाउड ऑफ फायर टू द स्मोक, जो धुआं उठता है आग जलाने पे, यानी कि उसकी तरह उस बर्ड की जो आवाज़ है वो जिस तरह उड़ रही है वो ऊंचाई की ओर बढ़ती चली जा रही है। द ब्लू डीप दाउ विंगेस्ट, हियर विंगेस्ट एक्सप्रेस क्रॉस बाय फ्लाइट, यानी कि उड़ान भरते हुए उसको पार करती चली जा रही है। ब्लू डीप एक्सप्रेस फॉर द क्लाउड, ये आसमान के लिए जो है एक्सप्रेस किया गया है। एंड सिंगिस्ट स्टिल डज सोयर, और जो है सिंगिंग करती जा रही है और उड़ती जा रही है। एंड सोयरिंग एवर सिंगिस्ट, और जो है ऑलवेज सिंग वेन फ्लाई, और उड़ती भी जा रही है साथ साथ में सिंगिंग भी करती जा रही है। बोथ सिचुएशन रन टुगेदर, सिंगिंग एंड फ्लाइंग। इट सिंग इट्स मेरी नॉट while it flies and it flies while it sings. In other words, it flies and sings simultaneously. In next lines, in the golden lighting of the sinking sun, over which clouds are brightening, thou dost float and run like an unbounded joy whose race is just begun. Here the poet expresses that the golden lightning, here the time of evening is expressed by the poet. कह रहा है कि इन द गोल्डन लाइटिंग ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द संकन सन, जब सूर्यास्त होता है उस समय जो है आसमान का रंग जो है गोल्डन कलर का हो गया है, गोल्डन की तरह लाइटनिंग कर रहा है। ओवर विच क्लाउड्स आर ब्राइटनिंग, ओवर विच क्लाउड्स आर ब्राइटनिंग, यहाँ पे जो है पोइट एक्सप्रेस कर रहा है कि संकिंग सन, या जब सन संक करता है यानी कि जब सूर्यास्त होता है तब जो है जो क्लाउड है वो किस तरह का हो गया है, ब्राइटनिंग आ गई, उसमें चमक आ गई है। दाउ डस्ट फ्लोट, एंड फ्लोट यहाँ ड्रिफ्टिंग के लिए यूज किया गया है। बर्ड जो है वो तैरने के समान ही जो है आकाश में जो है उड़ रही है। एंड रन्स, और जो है फ्लाइंग कर रही है। लाइक एन अनबॉडीड जो है यहाँ पे अनबॉडीड एक्सप्रेस टू द हैविंग नो बॉडी इनविजिबल, यानी कि उसका जो है शरीर नहीं दिखाई दे रहा है, केवल उसकी सूल जो है प्रेजेंट है, आत्मा हुज रेस इज जस्ट बिगिन। हियर द पोएट एक्सप्रेस idealizes the cheerfulness of the skylark flying high in the sky at sunset. Addressing to bird, the poet says that when the sun has just sunk below the horizon, its bright golden light lingers over the horizon and the part of the sky. It is too much cheerful. The poet implies that the invisible word song shows that it is as cheerful as joy itself. और इसके कहने का मतलब है, पोएट के कवि का तात्पर्य है कि उस अदृश्य चिड़िया का गीत प्रकट करता है कि वह ऐसी प्रसन्न प्रतीत होती है मानो स्वयं आनंद ही हो। इन नेक्स्ट लाइन, द पेल पर्पल एवन melts around thy flight like the star of heaven in the broad daylight. Thou art unseen, but yet I hear thy shrill delight. Here the pale expressed to the golden yellow कलर के लिए during the time of the sinking of the sun, क्योंकि ये poem का साइड जो है इवनिंग टाइम का है। पर्पल एवन, here the पर्पल मीन्स मिक्सचर ऑफ रेड एंड ब्लू। रेड संकिंग सन की जो लाइट है और ये ब्लू कलर जो है जो डार्कनेस बिगिन हो गई है, यानी कि अंधकार होना शुरू हो गया है, दोनों के मिक्सचर से पर्पल कलर जो है क्रिएट हुआ है। एवन मेल्ट्स यहाँ पे डिजॉल्व के लिए जो है एक्सप्रेस किया गया है, यानी कि उसी में मिल जाना, गायब हो जाना। अराउंड दाई फ्लाइट इंडिकेट टू द
फ्लाइंग इन द स्काई, यानी कि वो उड़ती उड़ती उस आकाश में ही डिजॉल्व हो जा रही है उस पर्पल और जो है गोल्डन येलो कलर में। लाइक अ स्टार ऑफ हेवन, यहाँ पे अगेन सिमली इज यूज हियर। लाइक अ स्टार ऑफ हेवन, किसके तरह, जैसे जिस तरह आकाश में जो है हेवन में स्टार होते हैं इन द ब्रॉड डे लाइट, और जब डे की लाइट इंक्रीज होना शुरू होती है उसी समय जो है जितने स्टार होते हैं हेवन के वो डिसअपियर होना शुरू हो जाते हैं, यानी कि वहाँ गायब होना शुरू हो जाते हैं। दाउ आर्ट अनसीन, यहाँ पे एक्सप्रेस कर रहा है पोइट टू द बर्ड कि यू आर अनसीन, यानी कि तुम दिखाई नहीं पड़ रही हो, बट एट आई हेयर दाई श्रिल डिलाइट, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी उस श्रिल डिलाइट को, उस आवाज़ को सुन पा रहा हूँ। हियर द पोइट एक्सप्रेस यद्यप आकाश में तथा उसके नीचे स्थित पृथ्वी के ऊपर अंधकार छा चुका है, फिर भी तुम्हारी जो है आवाज़ जो है आकाश में हमें सुनाई पड़ रही है। यहाँ हियर द पोइट्स वांट टू एक्सप्रेस इट इज़ एज अनसीन एज अ स्टार ड्यूरिंग डे लाइट, यानी कि उस तरह नहीं दिखाई पड़ रही है जिसे दिन में तारे नहीं दिखाई देते हैं। एट इट्स लाउड मेरी नोट इज़ ऑडिबल टू द पोइट, इट मीन्स दैट इट स्टिल फ्लाइज एंड सिंग्स इट्स सॉन्ग इन द स्काई, लेकिन उसकी आवाज़ को सुन पा रहा है। Although the darkness of night has fallen over the sky and the earth below. In next lines, keen as are the arrows. Here the poet again used the simile, the word as indicate to that. कह रहा है keen, keen indicate to the sharpness. उसकी आवाज़ उसी तरह शार्प है जैसे कि एरो। रेज ऑफ बीम ऑफ मून के लिए एक्सप्रेस किया गया है। ऑफ द सिल्वर स्पेयर, यार सिल्वर स्पेयर इंडिकेट टू द मून, यानी कि चंद्रमा के लिए यहाँ पे इंडिकेट किया गया है। हुज इंटेंस लैम्प नैरो, इंटेंस इंडिकेट टू द ब्रिलियंट, यानी कि चमकदार है, ब्राइटनिंग है। लैम्प नैरो इंडिकेट टू डिक्रीज, यानी कि कम, उसकी जो डिके हो जाती, कम हो जाती है उसकी जो चमक है। हुज इंटेंस लैम्प नैरो, यानी कि जब पंछी वो जो बर्ड है जब गाती है तो उसकी आवाज़ उस अंधकार को उसी तरह चीर रही है जिस तरह जो है यहाँ पे सिल्वर स्पेयर चंद्रमा को, और चंद्रमा को, किस चंद्रमा को, पूर्णिमा की चंद्रमा को जो है यहाँ पे एक्सप्रेस किया गया है, जिसकी जो है बीम, जिसकी किरणें बहुत ही तीव्र होती हैं। उसी तरह इस पंछी की आवाज़ भी तीव्र है और जो है अंधकार को चीरती हुई पृथ्वी पर प्रकाश देती है। इसी प्रकार इस पंछी की आवाज़ भी जो है उस अंधेरे को चीरती हुई पृथ्वी पर जो है पहुंच रही है। इन द वाइट डाउन क्लियर अनटिल वी हार्डली सी वी फील दैट इट इज़ देयर, या यहाँ पे पोएट एक्सप्रेस कर रहा है हार्डली सी, यानी कि उसे देख नहीं पा रहा है, फिर भी वो फील कर रहा है कि वो उस हेवन में प्रेजेंट है और सिंगिंग कर रही है। हियर द पोएट एक्सप्रेस दैट कंटिन्यूअस सिंगिंग एंड फ्लाइंग until it is quite dark. The poet can hardly see it then, but from the sound of its song he can gather that it is still flying and singing in the sky although night has fallen. यानी कि अंधकार हो चुका है फिर भी उसे एहसास हो रहा है कि वो उस आकाश में प्रेजेंट है और गा रही है। नेक्स्ट लाइन्स, all the earth and the air with thy voice is loud, as when night is bare. From one lonely cloud the moon rends out her beam, and heaven is overflowed. Here the poet express all the earth and air, कि उसकी जो सॉन्ग से है, स्काईलार के सॉन्ग से अर्थ और जो है एयर यानी कि हवा सब कुछ गुंजायमान हो जा रही है, यानी कि होल एटमॉस्फियर रिंग्स विद द सॉन्ग ऑफ द स्काईलार्क। एड्रेसिंग टू द वर्ड को एड्रेस करता है विद दाई वॉइस इज़ लाउड, यानी कि लाउडनेस एक्सप्रेस टू द,
keenness as when night is bare. Bare here indicate to the cloudless, यानी कि बादल ना हो रात में, उस तरह ये जो है उसकी आवाज़ एकदम जो है शार्प है. फ्रॉम वन लोनली क्लाउड. Here the poet express that those beams gradually fill to the overflowing the sky and the earth with the white light. The moon rains out her beam and heaven is flushed. Here the poet expresses that even so the loud merry note of the skylark passes through the dark of the evening and the flies the sky and the earth with its sweet music. The poet implies that the bird song is not only penetrative but also echoing and lightning, यानी कि उसका जो गाना है, उस चिड़िया का गीत केवल अंधकार भेदक ही नहीं है बल्कि गूंजने वाला तथा वातावरण में ठहरा रहने वाला भी है. नेक्स्ट लाइन्स. लाइक अ पोएट हिडन इन द लाइट ऑफ थॉट. हियर द पोएट एक्सप्रेस, कहता है कि जिस तरह लावा पंछी को संबोधित करते हुए कहता है कि कवि अपने काव्य के भाव के प्रकाश में छिपा रहता है, यानी कि हियर द पोएट एक्सप्रेस दैट द पोएट ऑलवेज रिमेन हिडन इन हिज पोएम, यानी कि अपनी जो काव्य में है वो छुपा रहता है इन द लाइट ऑफ द थॉट, जो एक्सप्रेस करता है अपने थॉट को, फीलिंग्स को अपनी पोएम में. सिंगिंग हाइम अनबिडन. हियर एक्सप्रेस द एफर्टलेसली, यानी कि बिना किसी प्रयास के. उसी तरह जो है सॉन्ग आपका बाहर आ रहा है. टेल द वर्ड्स इज रॉट. हियर रॉट एक्सप्रेस टू द स्पॉन्टेनियसली, स्वतः ही, यानी कि किसी बिना प्रयास के. यहाँ पे रॉट, टेल द वर्ड इज रॉट. रॉट इंडिकेट टू द वर्ड्स सराउंडेड, यानी कि चारों तरफ पूरे, यानी कि वातावरण में. सिंपैथी यहाँ पे सहानुभूति के लिए एक्सप्रेस किया गया विद होप्स एंड द फेयर्स इट हीडेड नॉट. हियर द वर्ड हीडेड इंडिकेटेड टू द डिड नॉट केयर, जिसके बारे में पहले किसी ने ध्यान ही नहीं दिया. हियर द पोएट वांट टू एक्सप्रेस दैट even so the skylark is hidden in the dark of the evening sky and sings its merry note to bring about some particular result in the world. The poet implies that the song of the skylark has a particular message for the world. Here the poet in last line express that his poem till the world is brought to sympathy with his hope and fear which is it did not heed in the past. कहने का मतलब है, कहता है कि कभी अपने काव्य भाव के प्रकाश में जिस तरह छिपा रहता है, विशेष विषय पर कविताओं की रचना करता है, ऐसा कवि कविताओं की रचना तथा गायन उस समय तक जारी रखता है जब तक कि वह दुनिया उसकी आशाओं तथा भाइयों के प्रति, जिन पर पहले ध्यान नहीं देती थी, अपनी सहानुभूति नहीं प्रकट करती है. यहाँ पे यही वर्ड एक्सप्रेस किया है, सिंपैथी, यानी कि सहानुभूति नहीं प्रकट करती है. होप्स एंड फेयर, यानी कि उसकी आशाओं तथा भावनाओं के प्रति जिसे पहले लोगों ने कोई ध्यान नहीं दिया था. इसी तरह यह लावा पक्षी भी लगातार गाता जा रहा है स्काईलार्क, जब तक कि वो लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर लेता. In next lines, like a high-born maiden. Here again the poet used the simile. The word like indicate to that. Like a high-born maiden. यहाँ पे कंपेयर किया है उस स्काईलार्क को कि जो है वो किसकी समान है. Like a high-born maiden in a palace tower, soothing her love-laden soul in a sacred tower with music sweet as love which overflows her pores.
Here the poet expressed that the skylark is just like a high-born maiden. और वो कहाँ पे बैठी हुई है? इन अ पैलेस टावर, अपने महल के सबसे ऊंचे वाले कमरे में. सूदिंग हर लव लेडन, उसका हार्ट ब्रोकन हो गया है इन लव, तो उसे सूद कर रही है. गिव अ कम्फर्ट और सोलेस सोल इन सेक्रेट आवर. हियर द इन सेक्रेट आवर एक्सप्रेस द सम टाइम एट नाइट, रात के समय में जो है विद म्यूजिक स्वीट एज लव. हियर द पोएट एक्सप्रेस द साउंड ऑफ द म्यूजिक. ओवरफ्लोज मीन्स फ्लो ओवर लिमिट ऑफ, यानी कि सीमाओं के ऊपर जो है बहना. हर बॉवर एक्सप्रेस अ लेडीज प्राइवेट रूम, यानी कि अपना किसी महिला का अपना निजी कमरा. Addressing the world, the poet says that the maiden of noble birth sits in her palace tower. सब अपने पैलेस टावर पे बैठी है. उसको जो है कंपेयर कर रहा है स्काईलार्क को हाई बॉर्न मेडन से. एट सेम सेक्रेट आवर, यानी कि जो है विशेष समय में. देन सी allies her love sick heart with the sweet love song, अपने टूटे हुए हृदय को वो सांत्वना दे रही है वहाँ पर बैठकर. विच fills her private drawer, यानी कि जो उसका अपना निजी कमरा है. रूम टू ओवरफ्लोइंग, यहाँ पे निजी कमरा स्काईलार्क के हेवन से जो है कंपेयर किया गया है. Even so the skylark is singing its sweet love song in some palace tower in the sky. The poet implies that the bird is love sick and sings its song to quieten its heart, यानी कि अपने हार्ट को सोलेस देने के लिए वो सॉन्ग सिंगिंग कर रही है. इन नेक्स्ट लाइन्स, like a glowworm golden in a dell of dew, scattering unbeholden its aerial hue among the flowers and grass, which screen is it from the view. Here the poet express, यहाँ पे अगेन द पोएट यूज द सिमिली लाइक ए ग्लो वार्म. यहाँ पे जो है स्काई लार्क को ग्लो वार्म से कंपेयर करता है. गोल्डन कलर जिस तरह ग्लो वार्म छोड़ते हैं जुगनू इन हिंदी वर्ड्स इन अ डेल ऑफ ड्यू. यहाँ पे द वर्ड स्कैटरिंग अनबिहोल्डन, द वर्ड अनबिहोल्डन एक्सप्रेस अनसीन. स्कैटरिंग मीन्स स्प्रेडिंग, फैलाता है या फैलाती है. और ड्यू यहाँ पे एटमॉस्फेरिक डेडेड मॉइस्चर, यानी कि ओस के लिए जो है एक्सप्रेस किया गया है. और डेल स्मॉल वैली कवर्ड विथ ट्रीज, यानी कि वृक्षों से आच्छादित छोटी घाटी के लिए. तो यहाँ पे जो है जुगनू से कंपेयर किया गया है स्काईलार्क को. Here the poet express that the skylark hidden in the dark of the evening to a glowworm hidden among the flower plants, यानी कि जिस तरह वो अंधेरे में छुपी हुई, जिस तरह जुगनू जो है फ्लावर प्लांट के जो है नीचे छुपा रहता है. एंड ग्रास एट नाइट, रात में. एड्रेसिंग द वर्ड द पोएट सेज दैट द गोल्डन फायर फ्लाई ऑफ ए स्मॉल बेडवेड वैली इज हिडन इन द डार्क, यानी कि इसी तरह तुम भी छुपी हुई हो. इट्स मिस्ट इज एटमॉस्फियर ग्लो अमंग फ्लावर एंड ग्रास ब्लेड्स विच कीप इट्स हिडन, यानी कि जो है पत्तियों के नीचे छुपकर जो है प्रकाश करती है, उसी तरह तुम भी जो है तुम्हारा सॉन्ग भी प्रकाश कर रहा है छुप के. एवन सो द स्काई लार्क इज हिडन इन द डार्क स्काई, छुपी हुई हो एमिड द ग्लो वॉर्म ऑफ इट्स मैरी नोट, फिर भी तुम उस अपने सुंदर गाने को गाती जा रही हो. हियर एंड देयर इन द बेवेट्स वैली ऑफ द नाइट स्काई, पूरी वैली में आज तुम्हारा जो है ये सॉन्ग, सुंदर सॉन्ग जो है गुंजायमान हो रहा है. द पोएट इम्प्लाइज दैट द स्काई लार्क इज द सॉन्ग सिंगिंग ग्लो वार्म ऑफ द नाइट स्काई, और जिस तरह वो जो है कवि का तात्पर्य है कि लावा पंछी रात्रि के आकाश में का गीत गाने वाला जुगनू है. In next line is like a rose embowered. Here the poet again used the simile, the word like expressed to that. Embowered indicate in surrounded by, यानी कि लिपटा हुआ है. In its own green leaves by warm winds deflowered till the scent it gives
makes friends with too much sweet. These heavy winged thieves. Here the poet express that like a rose embroidered. Here the word embroidered indicate to the each surrounded यानी कि लिपटा हुआ है. डिफ्लावर्ड ही इंडिकेट टू द इज डिप्राइव्ड ऑफ द ग्रेस एंड ब्यूटी यानी कि शान और सौंदर्य से वंचित किया जाता है. सेंट यहाँ पे जो है फ्रेग्रेंस के लिए, सुगंध के लिए जो है एक्सप्रेस किया गया है. गिव्स मीन्स इमिट करना, बाहर फेंकना. यहाँ मेक फ्रेंड्स विद टू मच. फ्रेंड्स यहाँ पे जो है वर्ड इंडिकेट टू द फ्रेंड्स. मेक फ्रेंड्स गिव अ फीलिंग ऑफ फेंटिंग यानी कि जो मूर्छित हो जाता है जो है आदमी, उसके लिए इंडिकेट किया गया है. मच स्वीट दीज हैवी विंग्स स्टेस. वियर द वर्ड इंडिकेट टू द वार्म विंड के लिए यानी कि जिस तरह जो है गर्म हवाएं, यहाँ पर गर्म हवाओं को जो है विशाल चिड़िया दर्शाया गया है. लाई के रोज किस तरह, गुलाब की तरह. यहाँ पे द पोएट एक्सप्रेस कर रहा है कि यहाँ पर कवि अंधकार में छुपे हुए लवा चिड़िया की तुलना जो है पत्तियों में छुपे हुए गुलाब से करता है और एड्रेस करता है जो है चिड़िया को. एड्रेस करते हुए कहता है कि ताज़ा गुलाब अपनी हरी पत्तियों में लिपटा रहे. पे इम्बॉवर्ड लिपटे होने के लिए जो है इंडिकेट किया गया है यहाँ पे. और डिफ्लोरियन पे जो है द पोइट कंपेयर्स द डार्क स्काई हिडन स्काई लाइक टू रोज हिडन अमंग द लीव्स यानी कि जिस तरह गुलाब पत्तियों में छुपा रहता है उसी तरह तुम भी छुपी हुई डार्कनेस स्काई में. एड्रेसिंग द वर्ड द पोइट सेज दैट द फ्रेश रोज इज रैप्ड इन इट्स ऑन ग्रीन लीव. और जिस तरह पत्तियों के बीच वो लिपटा रहता है और इसी तरह इट इज़ सेकंड बाय द हैरिशिंग विंड और जो है हवा के द्वारा उसे झचकोर दिया जाता है. टिल इट्स स्वीट स्मेल मेक्स देम फेंट और जो है तब तक उसे झोंके दिए जाते हैं जब तक कि उसकी जो फ्रेग्रेंस है जो चारों तरफ फैल जाए और फैलते ही जो है फेंट होना शुरू हो जाए, मूर्छित होना. फेंट बाय द फोर्स यानी कि उसके जो है मदहोश हो जाए उसकी झोंकों से. इसी तरह उसने जो है यहाँ पे एक्सप्रेस किया है फेंट बाय द फोर्स ऑफ इट्स एक्सेसिव स्वीटनेस. उसकी सुंदरता से, उसकी मिठास से, उसके जो है so the skylark is hidden in its own cheerfulness, but it is being harassed by the dark of the night, and it will be harassed by the darkness till the darkness gets fanned with the sweetness of the world's merry note. यहाँ पर कहता है पोइट, लेकिन इसे भी रात के अंधकार के द्वारा परेशान किया जा रहा है और रात्रि के अंधकार के द्वारा इसे तब तक सताया जाता रहेगा जब तक कि वह अंधकार इसके गीत के माधुर्य से बेहोश नहीं हो जाएगा.